قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسٹرالوجر علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویکلی ہورسکوپ لے کر۔ 30 اگست سے لے کر 5 سپتمبر تک یہ ویک ایسا رہے گا۔ ناظرین احتراماً اہل بیت کی عقیدت میں ہمارا آج کا جو ویکلی ہورسکوپ ہے یہ تھوڑا سا مختصر ہوگا۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اہل بیت اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو یاد کیا جائے، اور ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ عظیم قربانی اور اس کے بعد ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد کرنا چاہیے جس کے لیے یہ عظیم قربانی دی گئی تھی۔ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں۔ برج حمل ایریز کا یہ ویک اگر میں دیکھوں تو اس کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس پورے ویک کے اندر آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ کریئر روزگار کے معاملات ہیں، آپ کے کنٹرول میں، آپ کے اختیار میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں آپ لوگوں کی زیادہ تر مصروفیت اپنے فیملی گھر کے امور پہ رہے گی، توجہ آپ کی فیملی کی طرف رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے افراد جن کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مزید آگے نکلیں، مزید آگے بڑھیں، تو اس ویک میں کی گئی محنت کا پھل آپ کو مل سکتا ہے۔ اس ویک میں اگر اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تعلقات بھی بہتری کی سمت جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت انفرادی طور کے اوپر بہتر بھی ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور جوش ولولہ آپ کے مزاج میں دکھائی دیتا ہے۔ محنت کرنے کو دل بھی کر رہا ہے اور محنت کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہو، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہو، اس وجہ سے آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا۔ جہاں تک فائنینشلی طور پہ میں آپ کے معاملات اس ویک میں دیکھوں تو فائنینشلی طور پہ چیزیں الحمدللہ کافی حد تک بہتر دکھائی دیتی ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ایون کہ چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اخراجات تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ آپ دونوں کے مابین جو تعلقات ہیں اس میں کسی بھی وجہ سے کوئی خلل، خرابی، بدمزگی تھی تو وہ اس ویک میں دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صحت کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ صحت اس ویک میں آپ کی بہتر رہے گی، اولاد کا سکھ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی تعلیمی دلچسپی اس ویک میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بیرون ملک جانے کی خواہش زور پکڑ سکتی ہے، بلکہ بیرون ملک جانے کا جو حصول ہے اس میں کافی حد تک آسانی بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر اس ویک میں آپ ابتدا کرتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے تو اس میں بھی بہتری ہے۔ جہاں تک حج عمرہ زیارات کی خواہش ہے اس کی تکمیل بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک چیز کا خیال کریں، نوکری پیشہ افراد خاص طور پہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں وہ کوشش کریں گے کہ شاید آپ کے معاملات میں کچھ خرابیاں پیدا کی جائیں۔ درگزر کرنا، با اخلاق رہنا، ادب سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ آپ لوگوں کی خصوصیت میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ روحانی طور کے اوپر آپ کو آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں اس سے آپ کو دور کر سکتی ہے۔ دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، حادثات کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک، اس کو 212 دفعہ آپ پڑھیے گا، بالآخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ثور ٹورس کی جانب۔ برج ثور ٹورس یہ ویک کیسا گزاریں گے؟ برج ثور والوں کا یہ ویک اگر میں دیکھوں سب سے اچھی چیز اس میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آغاز کے جو پہلے 3 دن ہیں اس میں تو شاید معاملات اس انداز میں نہیں ہیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں، لیکن اس ویک کا اختتام فائنینشلی اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے بڑا بہتر رہے گا۔ روحانیت میں اضافہ، مذہب کے بارے میں نالج رکھنا، اسٹڈی کرنا، ہسٹری کو جاننا، پڑھنا، یہ تمام معاملات آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ سکس سینس آپ کی بڑی اسٹرانگ ہے۔ اپنی چیزیں دوسروں میں شیئر کرنا، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اس ویک کے درمیانی حصے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں کہ آپ کی ترقی پروموشن کسی بھی وجہ سے اگر رکی ہوئی ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا اس حوالے سے کچھ اچھی خوشخبری آپ کو سننے کو مل سکتی ہے۔ ذمہ داری بہت زیادہ رہے گی، خواتین خاص طور پہ گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتے ہوئے بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ اولاد کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں فکر مندی رہے گی کہ بچے ضد کر سکتے ہیں، بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ان کی خراب ہیلتھ کی وجہ سے اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنے بچوں کی جو خوراک ہے یا گھر میں آپ جو بھی کھانا پینا استعمال کرتے ہیں خوش خوراکی سے پرہیز کیجئے گا، یا بد پرہیزی سے بھی تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت مستحکم اور بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ملاقات رہے گی، دوستوں کی وجہ سے کچھ چیزوں میں بینیفٹ فائدہ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شریک حیات لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کچھ اتنے زیادہ بہتر دکھائی نہیں دیتے۔ آپ کا لائف پارٹنر موقع تلاش کرے گا کہ کب آپ کا موڈ آف کرے اور کب آپ اشتعال انگیزی اختیار کریں، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ کے مد مقابل کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے کوئی بھی ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، ہر شخص کی بات کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کسی کی بات کو ٹوک کر اگر آپ پلٹ کر جواب دینے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آپ لوگوں کے اگینسٹ جا سکتی ہے، آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ صحت کے معاملات اگر میں دیکھوں الحمدللہ بہتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن آنکھوں کی سویلنگ ہونا، آنکھوں میں انفیکشن ہونا یا آنکھوں میں درد ہونا، نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جانا، ایسے معاملات آپ لوگ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو نیند کے حوالے سے کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا۔ لین دین کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ حسد کرنے والے اس ویک میں آپ لوگوں کے اوپر حاوی دکھائی دیتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باری، اس کو 213 دفعہ پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ کی جانب۔ برج جوزہ جمنائے یہ ویک ایسا گزاریں گے 30 اگست سے لے کر 5 ستمبر تک۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ احتیاط طلب ہے۔ اس ویک میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس ویک کی ابتدا کسی لڑائی جھگڑے سے ہو سکتی ہے، اس ویک کی ابتدا کسی مایوسی کے معاملات سے ہو سکتی ہے، پریشانی سے ہو سکتی ہے۔ وراثتی معاملات میں دلچسپی لینے والے افراد تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ مشورہ ضرور دیں، لیکن اس وقت مشورہ دیں جب آپ سے مشورہ مانگا جائے۔ اخراجات میں بے پناہ اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ قدرے بہتر ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے تھے یا تاخیر کا شکار ہیں وہ بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کاروباری افراد کے لیے اس ویک کے اختتام تک بہتری اور تیزی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آغاز میں کیے گئے فیصلے جلد بازی میں آپ کے اپنے ہی کام خراب کر سکتے ہیں۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، تو بہتر ہے کہ پیسے کے پیچھے اس ویک میں بھاگنا آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ محنت البتہ اس ویک میں بہت زیادہ کریں گے، دلچسپی اپنے کاموں میں رہے گی، اور محنت کا صلہ اس ویک کے اختتام میں آپ کو ضرور ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات سے گریز کیجیے گا۔ خرید و فروخت میں دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے، یا ایسی چیز خرید لیں گے جو بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے غلط جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے کوئی غلط چیز جو ہے وہ آپ نے پرچیز کر لی۔ محبت کرنے والے افراد بہت زیادہ احتیاط کریں، بدنامی کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک میں محبت کے معاملات میں بالکل بھی کامیابی نہیں ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات الحمدللہ بہتر رہیں گے۔ آپ کا جیون ساتھی آپ کے لیے بہت سارے معاملات کے اندر مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اچھا ایڈوائزر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی آپ کو مشورے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوں گے۔ اس کو سن کر اگر عمل نہیں کر سکتے تو تنہائی میں بیٹھ کر
सोचिएगा ज़रूर कि आखिर उन्होंने आपको भूला क्या है और वो कहना क्या चाह रहे हैं। औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी रहेगी, औलाद की तालीम व तरबियत पे भी तवज्जो दिखाई देती है, बल्कि ज़्यादा वक्त इस वीक में औलाद के साथ भी गुजर सकता है। दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त या दोस्तों के साथ की गई मुशावरत आपके कारोबारी मामलात में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आपके जितने भी राजदान हैं जिससे आप दिल की बात अपनी शेयर करते हैं, उनकी तरफ से मुखलिसाना मशवरा इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आप लोगों की बेहतर है, अच्छी है, लेकिन 40 साल से ऊपर के जितने भी जौज़ा के अफराद हैं, आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीरो, 232 दफ़ा आप इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी काली रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये वीक कैसा रहेगा? तो कैंसरियंस के लिए इस वीक के इब्तदा से ही आगाज़ हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का। फैमिली वालों की तरफ से कुछ मामलात में खफगी दिखाई देती है कि फैमिली वालों की ऐसी गुफ्तगू में भी शायद आपको पसंद ना आए, आपको नागवार गुजरे, और बल्कि ये दिखाई देता है कि कैंसरियन वाले जितने भी अफराद हैं, इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरह हम अपने घर से बाहर निकलें और अपने घर वालों से दूर हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको वक्त अपने घर में ही गुजारना पड़ेगा, फैमिली वालों के साथ गुजारना पड़ेगा, फैमिली की ज़िम्मेदारियां पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर है। फ़ाइनेंशली चीज़ें इम्प्रूव, ग्रेजुअली इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन कोई बड़ी ज़िम्मेदारी फैमिली की ऐसी आएगी कि जिस पे आपको पैसे ना चाहते हुए भी खर्च करने पड़ जाएंगे। कोई रिश्तेदार आपके घर तशरीफ़ ला सकता है, दावत हो सकती है, को खाने पीने का एहतमाम आपको करना पड़ेगा, और वो कोई चाय या बिस्किट पे नहीं होगा, बल्कि एक अच्छा जो लंगर होता है वो करते हुए आप लोग दिखाई देते हैं। जहाँ तक औलाद की बात है तो औलाद की तरफ से सुख मिलेगा, औलाद आपकी फर्मा बरदार इस वीक में दिखाई देती है। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन रहेंगे। शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा, बल्कि हस्बैंड वाइफ के माबैन कुछ लंबी डिस्कशन, कुछ लंबी गुफ्तगू होती हुई दिखाई देती है कि माजी में कहाँ कहाँ पे हम ख़राब थे, कहाँ बेहतर थे, फ्यूचर को किस तरह से हमने बेहतर करना है। तो हर अंदाज में अपने ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश और मिलकर ज़िंदगी को आगे किस तरह से बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं, इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा दिखाई देती है। जहाँ तक कारोबारी अफराद की बात है, कारोबारी मामलात में दिलचस्पी रहेगी, कारोबार में मुनाफा भी मिलता हुआ दिखाई देता है। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी कैंसरियंस हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट ज़रूर आपको मिलेगा। हज, उम्रा, ज़ियारात की ख्वाहिश रखने वाले अफराद इस ख्वाहिश के ऊपर अमल दरामद करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी शरीक हयात की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उनकी इस पूरे वीक में 2 दिन सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है, उनकी ख़राब सेहत की वजह से भी फ़िक्रमंदी होगी। आपके बहन भाई जो छोटे हैं वो भी प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे, अगर बड़े हैं तो वो भी आपको तंग कर सकते हैं। तो रिश्तेदार, बहन भाई, बड़ा तहम्मुल मिजाजी से इनके साथ आपने चलना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विरो, 236 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की अशिया का सदका इस वीक में आप अपना निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो लियो वाले अफराद 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये वीक ऐसा गुजारेंगे। लियो वाले अफराद को इस वीक के आगाज़ में ही सबसे पहले एहतियात करनी चाहिए अपनी सेहत के हवाले से, कि सेहत के मामलात इस वीक के आगाज़ में और इस वीक के इख्तिताम में
दोनों सूरतों में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। इस वीक का आगाज़ कुछ मायूसी, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा, बहस व मुबाहिसा, तल्ख़ कलामी से होता हुआ दिखाई देता है। ये वीक आपने बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ गुजारना है। आपके साथ काम करने वाले अफराद या आपके मुलाज़मीन आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। सेहत बिगड़ती हुई दिखाई देती है। सेहत पे काबू पाने की कोशिश कीजिए। अपने डॉक्टर्स के साथ राब्ते में आपने रहना है, या जो भी एहतियाती अद्वियात हैं जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड पहले से कर चुके हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो गफलत की वजह से उनको छोड़ना नहीं है, उनका रेगुलर इस्तेमाल आपने करना है। विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और यही वजह बनेगी आपकी गफलत की कि लापरवाही, गुस्सा, बेचैनी पैदा करने की कोशिश करेगी आपकी विल पावर। मुकदमेबाजी के मामलात से आपने दूर रहना है, लड़ाई झगड़े के मामलात से आपने दूर रहना है। फिर इसके बाद ऐसे अफराद जो नौकरी के हसूल के लिए बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, आप लोग के लिए मैं देख रहा हूँ कि 2 और 3 तारीख ये इस वीक में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, कामयाबी आपको मिल सकती है। शरीक हयात इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात भी ख़राबी का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता बच्चों या औलाद की वजह से घर का सुख माहौल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। रिश्तेदार आपके लिए इतने ज़्यादा मुवाफ़िक नहीं होंगे। रिश्तेदारों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको इन तमाम चीज़ों से दूर करती हुई नज़र आ रही है, और वो ये है कि अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं अपने मामलात के अंदर, या दूसरों की अजीब व गरीब किस्म की बातों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक का इख्तिताम थोड़ा सा मुनाफ़े बख्श हो सकता है। नौकरी पेशा अफराद को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये वीक बेहतर है, किस्मत आजमा सकते हैं। ऐसे अफराद जो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं किसी से अपने ताल्लुक़ को बेहतर करने की, तो उनको भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ताल्लुकात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए भी ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो, 256 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीर रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। सुमला वालों के लिए इस वीक का आगाज़, इख्तिताम बहुत अच्छा है, लेकिन जो दरमियानी अरसा है उसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। इस वीक के आगाज़ से ही आपकी दिलचस्पी अपनी औलाद, बच्चों की तरफ तवज्जो, उनकी तालीम व तरबियत पे तवज्जो देना, उनकी काबिलियत को इम्प्रूव करना, क्या उनके लिए मुस्तकबिल में बेहतर है, ये फ़िक्र सोच जो है आपको अपने बच्चों के ज़्यादा करीब करती हुई नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक अच्छा है। इस वीक में तालीमी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है, पुरजोश दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जिनको मोहब्बत के मामलात में बड़ी दिलचस्पी रहती है, आपको ज़रा थोड़ा सा मुख्तात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। जल्दबाजी और जज्बातियत, ये दोनों आपके मोहब्बत के मामलात को बिगाड़ सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपकी सेहत ख़राब करेगा। हेल्थ जो है, वीकनेस या बेचैनी, घबराहट, हाथों में और पाँव में तलखी होना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, दूसरों को समझने से पहले ही उनसे उलझ पड़ना। अगर इस वीक में आपकी किसी के साथ बहस होती है, मुँहमारी होती है, तो इसमें ज़्यादा गलती आप लोगों की होगी, ना कि दूसरों की, क्योंकि आपने दूसरों को बेहतर अंदाज से समझा ही नहीं। जहाँ तक बात है शरीक हयात की, तो शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में बेहतर दिखाई देते हैं। कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी दिल की बात ज़रूर शेयर करें, उनसे डिस्कस करें, आपको कोई बेहतर नतीजा मिलता हुआ दिखाई देता है। रुके हुए काम मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अधूरे काम मुकम्मल इस वीक में इंशाअल्लाह ताला होंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसी तरह से ही चलेंगे। कारोबारी मामलात के अंदर प्रॉफिट होना, फ़ायदा होना, ये अभी मिलता हुआ नज़र नहीं आता। फाइनेंशियली
फाइनेंशियली तौर पे अलबत्ता सेविंग की तरफ रुझान बढ़ेगा, सेविंग करते हुए दिखाई देते हैं। किसी ज़रूरी अहम काम से ट्रैवल सफ़र भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। दोस्त आपके लिए इतने ज़्यादा मुवाफ़िक और मददगार नहीं होंगे। दोस्तों की जानिब से दिए गए मशवरे आपको अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से दूर करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में अगर किसी भी काम का आप आगाज़ करना चाहते हैं तो आप 3 तारीख के बाद किसी भी काम का आगाज़ कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो सकता है। जहाँ तक बात है बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश या इमिग्रेशन की ख्वाहिश, इस हवाले से सितारों के योग बड़े बेहतरीन और अच्छे नज़र आते हैं। नौकरी का हसूल आपके लिए आसान दिखाई देता है। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीमो, 258 टाइम्स आप इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? बुर्ज मेज़ान वालों के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन है। आगाज़ बहुत अच्छा है, दरमियानी हिस्सा भी बेहतरीन है, लेकिन इख्तिताम जो है इस वीक का वो ज़रा थोड़ी सी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक के आगाज़ में घर का सुख, ज़हनी सुकून, माजी में किए गए आमाल, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हों, अपनी नौकरी का तबादला करवाना है, घर की शिफ्टिंग है, तब्दीली है, हर लिहाज से इस वीक के अंदर चीज़ें आप लोग के लिए बड़ी बेहतरीन है। ख़रीद व फ़रोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, इस लिहाज से चीज़ें बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट। फिर ऐसे मेज़ान वाले अफराद जिनकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती है आपकी शादी को लेकर, अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी के हवाले से भी आप अगर इस वीक में कोई मन्नत है, मुराद है, दुआ है, वजीफ़ा है तो आप करते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होगी। इस वीक में आप लोग के स्टार्स बहुत अच्छे हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतरीन है। फ़ाइनेंशियली तौर पे आपके साथ चलने वाले अफराद आपको फ़ायदा बेनिफिट देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। बहन भाई आपके साथ ताउन करेंगे। दूसरों की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ायदा होगा, उसमें बहन भाई भी शामिल होंगे, उसमें रिश्तेदार भी शामिल होंगे, उसमें गैर अफराद भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुनाफिक दोस्त हैं जो आपके सामने मौजूद हैं और आपको उनकी पहचान करनी है। जो शख्स आपको मजबूर करे बार बार एक ही काम करने पे, उसकी बातों पे ज़रा गौर कीजिएगा, कहीं वो आपको डिट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, कोई गलत मशवरा जो है वो तो आपको नहीं दे रहा। क्योंकि अपनी काबिलियत है या अपनी छठी हिस्स है, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के ऊपर भी अंधा एतमाद आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आपके दोस्त ख़ास तौर पर आपके अखराजात में इजाफ़ा करेंगे। आपके दोस्तों की वजह से आप किसी मुश्किल में घिर सकते हैं या मुश्किल में पड़ सकते हैं, या अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपका महबूब आपके लिए बायस बदनामी साबित होगा। तो जल्दबाजी का अभी मुजाहरा किसी भी अंदाज में आप लोगों ने नहीं करना है। इस वीक का इख्तिताम इशारा देता है कि सेहत के मामला थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वीक के इख्तिताम में अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिएगा। अगर कानूनी मामलात में उलझे हैं उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। आपकी कोई कीमती अशिया गायब हो सकती है, चोरी या गुम सकती है। अपनी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे, अपनी दफ्तरी मामलात की ज़रूरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि बाद में पछतावा ना हो। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा आप इसको पढ़िएगा। इस वीक में अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये वीक ऐसा गुजारेंगे। इस वीक का आगाज़ बुर्ज अक़रब वालों के लिए मेहनत से होता हुआ दिखाई देता है। मसरूफ़ नज़र आते हैं, किसी न किसी काम की नौइयत से सफ़र है, ट्रैवल है, ये भी दिखाई देता है। फिर रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहन में मौजूद गलत ख़यालात, शुकूक व शुबहात दूसरों को लेकर वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
محنत पहले की निस्बत ज़्यादा है, जैसे कि पहले मैंने बताया। फिर पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। ऐसे अफराद जिनको सांस का, दमे का प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हब्स के मौसम में एहतियात करें, गर्मी से परहेज़ करें। गर्मी की वजह से बेहोशी तक तारी हो सकती है, यहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा एहतियात, पानी का इस्तेमाल ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस वीक का दरमियानी हिस्सा वक्त गुजरेगा फैमिली के साथ। फैमिली की मसरूफियत बढ़ती हुई दिखाई देती है। फैमिली के जो काम हैं वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी मामलात में भी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। ऐसे अफराद जिनको सेहत के दरपेश मसाइल हैं, सिर्फ़ उन लोगों के अलावा जिनको सांस की या दमे की प्रॉब्लम है या गर्मी की वजह से कोई ना कोई बीमारी उन तक पहुंचती है, इसके अलावा जितने भी बुर्ज अक़रब वाले अफराद हैं, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत इस वीक में बेहतर दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ कुछ मामलात के ऊपर बहस होगी और ये बहस तूल पकड़ेगी, बदमज़गी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपका ये जो इख्तलाफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर इस अंदाज़ में कीजिए कि खामोशी के साथ तवज्जो से सुने ज़रूर कि वो कहना क्या चाहते हैं। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कामयाबी इस वीक में मिलेगी। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन है और सेविंग की तरफ तवज्जो ध्यान रहेगा। आपके रिश्तेदार आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या रिश्तेदारों के कुछ ऐसे मामलात हैं जो बड़े संगीन किस्म के हैं, उनको भी सुलझाते हुए दिखाई देते हैं। डेली रूटीन में लोगों से मिलना मिलाना जिस तरह से आपका चलता है उसी तरह से रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों से मिलने से पहले सोच लीजिएगा कि दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया करेंगे और किसी दोस्त को अपने कारोबारी मामले में इन्वॉल्व करना ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, या किसी ऐसे शख्स का मशवरा अपने काम के लिए लेना जो आपके काम से बेखबर है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 266 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस का ये वीक 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक कैसा रहेगा? बुर्ज कौस वालों के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन है। कोई भी सयारा ख़राब नशिस्त में या ख़राब पोजीशन में दिखाई नहीं देता। जहाँ तक आपकी अपनी शख्सियत की बात की जाए तो सहर अंगेज़ी पाई जाती है। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें बहुत ज़्यादा दिलनशीं हो सकती हैं कि दूसरे आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन सकते हैं। इस वीक में अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी को पैगाम देना चाहते हैं, किसी के थ्रू कोई आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो हर अंदाज में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये वीक अखराजात का वीक नहीं है, ये वीक सेविंग का वीक है कि अखराजात जो हैं वो कम दिखाई देते हैं लेकिन सेविंग आपकी ज़्यादा दिखाई देती है। इस वीक के अंदर किसी ज़रूरी काम की नौयत से आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। सफ़र दिखाई देता है, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। इस वीक में की गई इबादत, वज़ाइफ, दुआएं, मनते, मुरादें तमाम पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं कि अल्लाह पाक इस वीक में बुर्ज कौस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान दिखाई देता है। ये वीक ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से अच्छा है। ये वीक किसी भी नए काम की इब्तदा है, आगाज़ है, उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। मोहब्बत करने वाले अफराद कोशिश करें कि अपने रिश्ते को कोई नेक नाम दें, क्योंकि इस वीक में आपकी दिल की बात आपके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच सकती है, या आप अपने मामलात को सुधारना चाहते हैं तो इस वीक में ये भी बेहतर दिखाई देता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, बल्कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी कम बल्कि दोस्त दिखाई देता है कि हर कदम पे आपकी मदद ज़रूर करेगा, आपके लिए मावन मददगार है। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बजाय इसके कि आप बातें छुपाएं, आप उनसे डिस्कस करें, किसी अच्छे और मुखलिसाना नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं। ये वीक कामयाबी का वीक भी है, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है, उसकी तकमील का वीक भी है, कामयाबी उसमें नज़र आती है। कारोबारी अफराद को ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहना है, जल्दबाजी
بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، خاص طور پہ ایسے افراد جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں، مل کر بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو شراکت دار آپ کے کاموں کو تھوڑا سا الجھانے کی کوشش کریں گے تو اپنی آنکھیں کان دونوں آپ نے کھلے رکھنے ہیں اور ایک ایک چیز کو بڑے بہتر اور احسن انداز سے ضرور سننا ہے۔ جہاں تک دوستوں کی بات کی جائے تو دوست آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گے، آپ کے بڑے اور چھوٹے بہن بھائی دونوں آپ کے لیے فائدہ مند اس ویک میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمان، 298 دفعہ آپ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو 30 اگست سے لے کر 5 سپتمبر تک یہ ویک کیسا رہے گا۔ برج جدی والوں کے لیے اس ویک کا آغاز، ابتدا، درمیانی حصہ، اس ویک کا اختتام، یہ پورا کا پورا ویک آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس ویک میں کسی بھی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس ویک میں اگر آپ سوچ سمجھ کر تحمل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی مثبت عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے، کام کی غرض سے بیرون ملک یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی کی طرف توجہ، محبت، پیار بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جتنے بھی اختلافات تھے وہ ختم ہوں گے۔ بحث و تکرار البتہ رہے گی، گریز کیجیے گا دوستوں کے ساتھ کسی بھی بحث میں الجھنے سے، اور اپنے دوستوں کو اپنے فیملی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے مت دیجیے گا۔ اپنی مدد سے یا اپنی ہی عقل اور شعور سے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس ویک کا اختتام جو ہے وہ کسی سفر کی جانب اشارہ کرتا ہے، کسی ضروری کام کی غرض سے آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے گا۔ خرید و فروخت کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، کاروباری افراد کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں ان پہ توجہ دینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہترین دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں آپ لوگ محتاط رہیں، محبت کے معاملات میں ناکامی بدنامی کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات میں کچھ حد تک اضافہ رہے گا ممکنہ طور پہ، اور کچھ معاملات کے اندر تاخیر بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ کام جو آپ شدت سے کرنا چاہتے ہیں، جن کا فوری طور کے اوپر آپ کو نتیجہ چاہیے، وہی کام آپ کا ڈیلے ہوگا، اور جس کام کو آپ چھوڑ دیں گے یا آپ کی خواہش ہے وہ پوری اور اس کی تکمیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فیملی ممبرز، آپ کے جتنے گھر میں رہنے والے افراد ہیں، رشتہ داروں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، لیکن والد کی طرف سے کچھ معاملات میں ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کسی کے اوپر اعتبار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ ماضی میں وہ کن مقام پہ یا کس جگہ پہ آپ کے لیے مددگار رہا ہے۔ ایسے افراد کے اوپر اعتماد کرنا اچھا نہیں ہے جو بالکل آپ کے لیے نیا ہے اور اس کی آپ کے ساتھ بالکل نئی دوستی ہوئی ہے۔ تنہائی کا شکار ہوں گے اگر دوسروں پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور دوسروں کی وجہ سے اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا، اور کچھ حد تک نظر بد کا شکار بھی رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا صبورو، اس کو آپ نے 298 ٹائمز پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے 30 اگست سے لے کر 5 سپتمبر تک یہ ویک کیسا رہے گا، تو برج دلو والوں کو اس ویک کے آغاز میں تھوڑا سا احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ویک کے آغاز میں اخراجات میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ معاملات کے اوپر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 2 تاریخ کے بعد سے ہی حالات و واقعات معاملات آپ کے کنٹرول میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس ویک کے آغاز
आगाज़ में जल्दबाजी में या बड़ेपन में कोई इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा देनी कि इस वीक के आगाज़ से ही या पूरे महीने का अपना बजट जो है उसको आप सेट कर बैठें। तो पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, बड़ा सोच समझ के आपने उसका इस्तेमाल करना है। एक चीज़ ऐसी है कि जो आपके पैसे में बरकत पैदा कर सकता है, वो है सदका, खैरात, खदमत खल्क, नज़र न्याज करना। ये चीज़ आपकी फ़ाइनेंशली मामलात को बचा सकता है। इस नीयत से अगर आप अपना ख़र्चा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके रिस्क रोज़गार में, पैसे में बरकत ज़रूर पैदा करेगा। इस वीक का आगाज़ कुछ रिश्तों को लेकर इख्तलाफात भी नज़र आते हैं, इख्तलाफात दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे आप दूसरों के साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बेहतर है कि तहम्मुल मिजाजी के साथ जो आपके प्यार करने वाले हैं, करीबी हैं, दोस्त हैं, आपका शरीक हयात है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ अपने रवैये को बेहतर रखिएगा। क्योंकि आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन, खामोशी, तन्हाई, अलहदगी, अलहदा रहना और ऐसी बातों पे बहस करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, बहस व मुबाहिसे से इज्तनाब कीजिएगा। अदरवाइज़ इस वीक के आगाज़ से ही ख़राबियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। 2 तारीख के बाद से मामलात कदरे बेहतर हैं, आपकी शख्सियत में निखार देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा इम्प्रूव है, लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, रिश्तेदारों की सपोर्ट रहेगी, फैमिली मेम्बर्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। कारोबारी मामलात की गर्ज से आपको ट्रैवल सफ़र करना पड़ेगा, मेहनत भी पहले से ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके नताइज बड़े पॉजिटिव हैं। कारोबारी अफराद को इस वीक में मुनाफा मिलेगा, पड़ोसियों की तरफ से मोहब्बत जो है, प्यार, वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर माजी में जितने भी अमाल आपने किए थे उनकी तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। बच्चों की तरफ से सुकून राहत रहेगी कि बच्चों पे तवज्जो नज़र आती है कि बच्चों की वजह से आपको तमाम मसरूफियत तर्क करके उन पे तवज्जो देना ये आप पे वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी है और बल्कि करते हुए भी दिखाई देते हैं। लंबा सफ़र है, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसमें आसानी है। इमिग्रेशन की ख्वाहिश रखने वाले अफराद आपकी इमिग्रेशन के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बसीरो, 302 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस की अगर बात की जाए, 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, तो इस वीक का आगाज़ पाइसिस वालों के लिए बहुत अच्छा है, इख्तिताम भी अच्छा है, लेकिन दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा एहतियात तलब है। इस वीक का आगाज़ कारोबारी अफराद के मुनाफे से हो सकता है, बल्कि अच्छी बात यह है कि बुर्ज हूत वालों की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, और बड़े बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, दोनों से फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पैरों में, घुटनों में दर्द जो है वो नज़र आती है, तो अपनी सेहत पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। सेहत के मामलात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे, दोस्तों के साथ शराकतदारी हो, मिलकर को काम करना है, या दोस्तों की मुशावरत से मुस्तकबिल में कोई अच्छा मशवरा जो है वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात में इजाफे का हिस्सा है कि एकदम से बहुत बड़ी रकम आपसे निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि वापस या रिवर्स होती हुई नज़र नहीं आती। अगर कोई शख्स आपसे माली मदद मांगता है तो माली मदद उसकी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इतनी कीजिएगा कि बाद में आप ख़ुद परेशान ना हो जाएं कि आपके अपने पास इतने पैसे ना हों कि बाद में पछतावा हो कि वहाँ से पैसे जो हैं वो मिले नहीं और अपना सर्कल जो है वो नहीं चल रहा। अलबत्ता ये वीक और इसका इख्तिताम फ़ाइनेंशियली एतबार से आप लोग के लिए बेहतर तो है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे अगर किसी को भी पैसे दे दिए तो वापस आने की उसकी कोई नवीद नज़र नहीं आती है। आपके साथ फैमिली वाले पूरा ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन शरीक हयात के साथ ताल्लुकात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते हैं कि आपस में किसी न किसी बात के ऊपर तल्ख़ कलामी, बहस व मुबाहिसा
लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी आपस की ये जो नाराज़गी है वो 24 घंटे से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती। उसके बाद हालात व वाक़यात दोबारा नॉर्मल रूटीन पे आते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे आपके लिए इस वीक में बहुत अहमियत इख्तियार करेंगे और बच्चों की वजह से घर का माहौल भी बेहतर दिखाई देता है। एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर किसी शख्स के साथ आप अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या वो शख्स माजी में भी आपके लिए मददगार था, क्योंकि आप जज्बात में आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हर शख्स के साथ करने वाली नहीं होती। लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और आपके ताल्लुक़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कादिर। 305 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।